ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ p ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ? t ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡੈਲਟਾ p ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਡੈਲਟਾ t, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਬਟ what if this change in time is very 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 small? ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀ ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ dp/dt। ਸਰ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਡੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, dt ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ dt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਚੇਂਜ। We have differentiated function p with respect to t। ਇਤਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, 5 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ। ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਵਾਟਰ, ਮਿਲਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ ਹੀਟ, ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਸਰ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਚਾਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? dc/dh। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੀਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਚਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੂ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਸੀ। ਚਾਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੀ ਐਚ ਨਾਲ, ਐਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਜ਼ dc/ds। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ dc/dt? ਇੱਥੇ ਟੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਾ। ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ, ਘੱਟ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਚਾਹ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ? dt ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਚੇਂਜ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। p ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ t ਦਾ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ? p = 2t। ਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ p ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਰ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ p ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ t? ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਰ ਆਫ p ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ p ਦਾ ਤੇ t ਦਾ। p ਬੇਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, t ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦੱਸਿਓ? p = t²। ਸਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਯੈਸ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸਰ dt। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, dt ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, dp ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ,
मान लो p इज इक्वल टू 2t, राइट। सर ये एक p फंक्शन है, याद रखना है, पुरानी चीज़ां भुलनी नहीं, फंक्शन है। की है ये? मान लो पोजीशन है, पोजीशन ना हैगा इस फंक्शन का। टी की है सर? एक वेरिएबल है। ना की है? टाइम है। सर टाइम चेंज करी जाओ, पी की वक्री वक्री वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। मिल गई इक्वेशन। हुण सानू क्वेश्चन पूछ रहा है बई दसो जे तुहानू ये इक्वेशन पता है, कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द चेंज इन पी व्हेन वी डू वेरी स्मॉल चेंज इन टी, या कैन यू डिफरेंशिएट इट, राइट। तो इहदे वास्ते सानू थोड़े जे रूल आने चाहिए हैं, डिफरेंशिएशन किद्दां करनी है। P इज इक्वल टू टी, सिंपल तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सर कैन यू कैलकुलेट dp बाय dt, कैन यू कैलकुलेट, है ना। जे मैं तुहानू इक्वेशन दे देवां तो मैं इस पासे आंसर लिखी जावांगा, इत्थे इक्वेशन लिखी जानी है। p इज़ अ फंक्शन ऑफ t, किद्दां सर? सेम टाइम 1 तो पोजीशन भी 1, टाइम 2 तो पोजीशन भी 2। सर कैन यू कैलकुलेट, राइट। एक होर कर लैने हाँ। सर इदां दा फंक्शन होए तां, सर इदां दा फंक्शन होए तां, सर इदां दा फंक्शन होए तां हो की रहा? पावर हाँ सर, टी दियाँ वेरीएबल की कुछ पावर है, किद्दां कड्डोगे सर? डी बाई डी, राइट। तो दसना मैं की रूल लगा रहा हाँ, है ना। इनू बाद च करांगे टॉप वाले नू, पहले थल्ले वाले नू कर लईए। तो चलो मैं डिफरेंशिएशन करदा हाँ। इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होएगी 2t, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होएगी 3t दी पावर 2, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होएगी 4t क्यूब। दस सकते हो की रूल लगता पाया है? ऑब्जरवेशन मारो ज़रा। सर एक गल, पहली गल पावर होंदी सर कोई वो घट जाती है, किन्ने तो? 1 तो। वेरिएबल की पावर सी 2, डिफरेंशिएट करके की हो गया? 1 हो रहेगी सर, राइट। इत्थे की हो रहा सर? इत्थे भी सर सेम ऑब्जरवेशन, सेम ऑब्जरवेशन सर। 3 सी पावर, इत्थे रहेगी 2, सर इत्थे थी 4, इत्थे रहेगी 3, ठीक है। तो असी वेरीएबल की जी पावर है उन्होंने डिफरेंशिएट करना होएगा, असी एक पावर घटा देनी है। क्या यही हो रहा है? नहीं सर, एक और ऑब्जरवेशन है, देखो सामने 2 आ जा रहा है मल्टीप्लाइड, 2t का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। 3 सामने आ जा रहा है 4, सर ये कितों आ गया? साडा दिमाग लग गया, अरे नहीं सर, ये देखो पावर जी सी वो गहाँ आ गई, 2 आ गया गहाँ, ये तो 3 आ गया जो डिफरेंशिएट करनी है, ये 4 गहाँ आ गया, राइट। इस हिसाब नाल हुण सानू ये बनना चाहिए सर, p इज इक्वल टू जे हुंदा t दी पावर 5, t नू असी 5 पावर नू गां ले आना सर, मल्टीप्लाइड बाय t दी पावर सर 5 माइनस 1, या फटाफटी हो जाना है थोड़े टाइम बाद 5t दी पावर 4। हो गया क्लियर? सिंपल है, ये रूल तो समझ गए, है ना। किसी भी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है असी, किसी भी फंक्शन की असी जो डिफरेंशिएशन करनी है, जो पावर होएगी वेरिएबल की वो 1 घट जाती है, सिंपल जिहा रूल। वट अबाउट दिस p इज इक्वल टू टी, सर t की पावर दस्यो जरा। जे कोई पावर लिखी नहीं होंगी तो पावर की होंगी है 1, तो सर 1 गाह आ जाता। असी रूल सेम ही रखना भाई, जो थले लगता पाया वही उपर। हाँ जी सर, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा t की पावर सर कितनी है 1, सर 1 घटाओ जरा, की हो जाएगा t की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होए 1 हो जाती, कोई भी चीज़ होए, है ना। जे मैं कहा 1000 जिन्ने भी 0 लगा दो तो पावर करना हाँ 0, आंसर 1 है जी, ठीक है। तो इतने t की पावर 0 हो रही है तो आंसर आना है 1। ओके, dy बाय dx कटो, ये x एंड y विच ये रिलेशन है ना, फंक्शन तो साढ़े वेरीएबल ये रिलेशन है ना। 6 क्वेश्चन हैं, इन्हों का की करना है बेटा, प्रैक्टिस कर लो, जो पहली बारी कर लो हाथ चलाओ तो तुहानू आराम नाल समझ आना है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। चलो हूँ थोड़ा जहा, दिस इज़ आर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, जहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज, आगे चलते हैं। सर फंक्शन इदा का होए तो की करांगे, y इज इक्वल टू 3x², फिर की करांगे? की आउंदा बई तैनू? सर x² कला आउंदा हुणे सीखिया सी, 2x हो जाना सी उहदी डिफरेंशिएशन, है ना। 2 गाहां नू आ जाना सी और x की पावर 1 घट जानी सी, है ना। तो dy बाय dx कट सकदा। परेशानी की दे रहा 3, बेटा उहदे नाल कुछ नहीं करना, उहदा दा उहदा ही लिख देना, 3 उहदा दा उहदा,
इनू करी है डिफरेंशिएट सर ये हो जाएगा 2x, आंसर आ जाएगा 6x। याद रखना ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ dy/dx है ना। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ डिफरेंशिएशन कर देती ਅਸੀਂ। एक और करते हैं, मान लो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सर 4 उदा ही 2 थले आ जाएगा, x दी पावर 1 रह जाएगी, 8x है ना। धीरे धीरे हौली हौली ये मूँह जबानी हो जाने हैं है ना। थोड़ा जिहा मुश्किल करदा क्वेश्चन क्या, तुसीं कहोगे सर ਇਹਦਾ ਕੀ मुश्किल है ना। y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर की होएगा, ਜਿਹੜਾ रूल है वही चलना है सर, -3 की परवाह नहीं, इदा का इदा सर ਉਹਨੂੰ कर लो x स्क्वायर ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ सर 2x -6, ये होया dy/dx इस वारी। ठीक है, तो दिस इज सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइज, ये भी कर लो, हाथ चलाने हैं बेटा, ये नहीं कि मूँह जबानी करी जाने हैं। स्टार्टिंग जो सानू प्रैक्टिस चाहिए है, थोड़ा जिहा रूल नवा है वो सीख लेना है। ठीक है, चलो हूँ चलिए सर होर पंगा लीए सर थोड़ा जिहा। सर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इनू किद्दां डिफरेंशिएट करिए सर। मैं क्या रूल की है सर, पावर घटानी सी एक तो जिहड़ा भी पावर है वो अगे लियानी सी, सिंपल रूल है, वो तो है, इत्थे भी सेम ही लगना है। बट सर ये तो थल्ले है, मैं कहना ऊपर भी लिख सकदा इनू, एक्स स्क्वेयर नू इदां भी लिख सकते हो, एक्स दी पावर -2 है ना। लिखण दा तरीका है, जिद्दां असी मीटर पर सैकेंड लिख सकते हैं, वेलोसिटी दे यूनिट होंदे हैं ना स्पीड दे, असी इदां भी लिख सकते हैं ms-1 है ना। ऊपर लेके जाना है ना पावर 1 तो -1 हो जाना है। असी जे एक्सेलेरेशन दे यूनिट इदां लिख सकते हैं मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। तो लिखण का एक और तरीका है, ऊपर ही लिख दो पावर माइनस से लिख दो, माइनस का मतलब पावर थले जानी है, ठीक है ना, एक्चुअल थले है। तो लिखण का तरीका हो गया, पर ये की हो गया, सानू पावर मिल गई, और पावर नाल सानू रूल पता है सर की करना है, सर पावर अगे लियानी है, -2 पावर है तो -2 ही अगे आएगा, यदि पावर की है -2 तो अगे आ गया सर, मल्टीप्लाइड हो जाएगा एक्स दी पावर की होएगी सर, यदि जिहड़ी पावर है ਉਹਦੇ 'ਚ एक घटा दो, -2 -1 की हो जाएगा सर -3, तो इत्थे आ जाएगा -2 एक्स दी पावर -3, दिस इज dy/dx। ठीक है ना, तो बटे तो बनाना नहीं सी, बस माइनस है और कुछ नहीं है, तो सानू डरन की लोड़ ही नहीं सी, ये भी असी कर लिया। चलो गुड, नाउ व्हाट इफ y इज इक्वल टू 2, मतलब सर कोई वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं, y एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, फिक्स्ड वैल्यू है। अब हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, और हमसे पूछा जा रहा है dy/dx क्या होगा। आंसर बता दूं 0 आएगा, बट इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 रुपये हैं, y क्या है, फंक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी है 2, फिक्स है ना, फिक्स है, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। और मैं आज आपसे पूछूं ये बताओ, आपके पास जितने पैसे हैं, y उसी का फंक्शन है ना कि आपके पास कितने पैसे हैं, है ना, वो मेरे पास जितने पैसे हैं उस पे कितना फर्क पड़ेगा। मतलब अगर मैं अपने जेब में पैसे चेंज करूं, 100 की जगह मैं अपनी जेब में 200 डाल दूं और आपसे पूछूं बताओ अब कितने पैसे हैं आपके पास, आप बोलोगे अगेन सेम सर, वो मेरा तो सेम ही है ना, y इज इक्वल टू 2, इट्स अ फिक्स, इट इज नॉट वेरिंग विद योर वेरिएबल, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं dy/dx क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उल्टा कहने का मतलब dy/dx क्या होगा, 0 होगा। राइट, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सर जरा एक्स वेरिएबल देखना, ये क्या था सर, आपकी जेब में पैसे, राइट, उससे कोई रिलेशन में दिख रहा है आपको एक्स, यहां पर जहां पे आप एक्स की वैल्यू डालो 100 से 200 कर दिए, जिसके कारण चेंज हो के वाई की वैल्यू चेंज हो, नहीं होगा। इसलिए कांस्टेंट वैल्यूज का हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। नाउ लेट अस हैव अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2। कैन वी डिफरेंशिएट इट? क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर अलग अलग किए थे, वो तो आते हैं सर हमें, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें करने में क्या प्रॉब्लम होगी। सर ट्राई करते हैं। ओके सर, डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स ही वेरिएबल है उसी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सर एक्स स्क्वेयर का 2x, सर एक्स का क्या होता है सर, 1 रह जाता है ना, एक्स की पावर 0 हो जाती है, एक घटानी है पावर। सर 2 क्या होता है सर, 2 तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, 0 हम लिखते नहीं है। अच्छा सर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 45। लेट अस डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सर 2 वहाँ आ जाएगा, 6x माइनस 2x निकल जाएगा, 1 हो जाएगा x की जगह, और प्लस 45 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, x को चेंज करने पे 45 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो फिक्स वैल्यू है। तो आंसर आ जाएगा 6x माइनस 2। दिस इज माई आंसर। एक और कर लीजिए। What will happen when we say y is equal to x plus 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर? सर थोड़ा सा बुरा लग रहा है नीचे एक्स स्क्वेयर, तो ऊपर ले आओ भाई, x की पावर माइनस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स? सर x तो 1 हो जाएगा, और सर माइनस 2 सामने आ जाता है, थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सर x की पावर माइनस 2 में एक और घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2x की पावर माइनस 3। ब्रैकेट को खोल लें, 1 मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई करके, माइनस 2x की पावर माइनस 3। ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें अब सारे रूल्स मिक्सड अप हैं और आपको उसका जो डिफरेंशिएशन है वो निकालना होगा। पेज आ जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने फंक्शन माने थे दो, राइट, और कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे था p इज इक्वल टू 2t और हमें बोला डी बाय डी निकालो। अब तो ये बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, डी बाय डी, है ना, 2 ही रह जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, what will be the डी बाय डी, है ना, t का स्क्वायर है, 2 सामने आ जाना है, एक t रह जाना है, राइट। अब होता क्या है कि ये जो आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, ये कोई और क्वांटिटी या कोई और इंफॉर्मेशन दे देती है। मतलब सर सोचिए, हम वेलोसिटी किसे बोलते हैं? सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा। क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ सर, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम? और अगर टाइम बहुत छोटा रखूं, वेरी स्मॉल, तो हम बोलते हैं कि सर उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वो क्या कहलाएगी, डी पी बाय डी टी। वेरी स्मॉल, डी टी इज़ वेरी स्मॉल। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर आप डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करते हैं तो आपको जनरल वेलोसिटी कह सकते हैं, बट अगर डी पी बाय डी आप निकाल लेते हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। आपको, अगर आपको पता करना है सर कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, 3 सेकंड पे, 2 सेकंड पे एग्जैक्टली, राइट, आपको पता करना है कितनी वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको सिंपल डिफरेंशिएशन से मिल सकती है। देखिए थोड़ा, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वहीं पर फोकस करते हैं। हमने किया था, एक फंक्शन था p इज इक्वल टू 2t। सर डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी पी बाय डी टी। व्हाट इज डी पी बाई डी टी? चेंज इन पोजिशन बाय टाइम। सर चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, अरे सर ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एंड इट विल बी 2। बेटा चेंज इन पोजिशन कितना होता है, मीटर्स में होता है, टाइम कितना होता है, सेकंड्स में होता है, बन गया ना 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे सर 2 की वेलोसिटी है। व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन, सर p इज इक्वल टू टी स्क्वेयर।
सर क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं डी पी बाई टी टी, क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बहुत छोटा टाइम चेंज करें तो पोजीशन कैसे चेंज होगी? सर ये तो आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमने डिफरेंशिएट कर देंगे तो टू टी मिल जाएगा, राइट? व्हाट वी आर गेटिंग, सर ये अलग एक और रिलेशन मिल गया आपको, बट इस टाइम डी पी बाई डी टी करते हो, डी पी बाई डी टी करते हो, ये किसके बराबर होता है? सर डी पी बाई डी टी इज सिंपली वी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, राइट? तो अगर आप डिफरेंशिएशन करना सीख गए किसी भी इक्वेशन को, अगर वो पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन हो, आप डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, उसका रिलेशन मिल जाएगा। यहां पर गौर फरमाना है, यहां पर तो सिंपल टू था, यहां टी भी है। सर ये टी क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे आप वैल्यू डालो, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट? तो अब ये हटा के अगर मुझे पी और टी नहीं दिया होता और मुझे बोला होता यार वी 2 के बराबर है, 2 मीटर पर सेकेंड है ना, यहां पर क्या आ रहा है? वी 2t के बराबर है, ये एक रिलेशन है। दोबारा से जैसे पोजीशन टाइम में रिलेशन बन रहा था, हमने डिफरेंशिएट करके एक और रिलेशन निकाल लिया अब वेलोसिटी का टाइम के साथ, राइट? ये हमारी मेहनत है वी निकालना। कैसे निकालना सर? अगर पोजीशन टाइम पता है उसको डिफरेंशिएट कर देना, वो जो मिलेगा आपको वो वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अच्छा यहां पर अगर क्वेश्चन पूछें व्हाट इज द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड, अरे सर इट इज कांस्टेंट, 2 ही रहेगी, हर एक इंस्टेंट पे सेम रहेगी। क्यों? कुछ और डाल नहीं सकते, यहाँ टी डालने के लिए जगह ही नहीं है, राइट? एक ही है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी 2 ही है। व्हाट अबाउट दिस सेम क्वेश्चन, सर वेलोसिटी एट 3 सेकंड कितनी होगी? सर 3 डालना जरा ऊपर, 6 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। सर एट 4 कितनी होगी? सर 8 मीटर पर सेकंड। दिख रही है वेलोसिटी चेंज होती हुई? एट 5 कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम हर एक इंस्टेंट पे, यहां कौन सा इंस्टेंट है? ये देखो एक इंस्टेंट 3 सेकंड वाला, यहां पे 4, यहां पे 5, एग्जैक्टली उसी टाइम पूछ रहे हो कितनी वेलोसिटी है। तो वो कैसे पता लगेगी? सर कोई एक्सप्रेशन मिल जाए इस तरह से, है ना, v इज इक्वल टू 2t मिल जाए हमें, तो हमें तो बस वैल्यूज डालनी है और वेलोसिटी की वैल्यू पता लग जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी वैल्यू होगी, है ना। और हमें अगर सीधा सीधा नहीं दिया है, हमें बोला है कि सर पोजीशन इस तरह से टाइम पे डिपेंडेंट है, तो हम उसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उससे हमें v मिल जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2t, तो इस रिलेशन से काम चला लेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बोलूँ अच्छा सर ये बताओ, क्या वेलोसिटी हमने देखा वो तो चेंज हो रही है सर, राइट, क्या dv बाई dt निकाल सकते हो, यानी कि एक और बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो? करके देखते हैं भाई। अब ये एक्सप्रेशन भूल गए, वेलोसिटी यहां तक पहुंचे, इसको डिफरेंशिएट करो सर t से दोबारा, अच्छा कर देते हैं, तो 2 ही रह जाएगा, t हट जाएगा। dv बाई dt क्या होता है? अगेन नई इंफॉर्मेशन, क्या है ये? एक्सेलरेशन है। सी, हमें सिर्फ अगर एक्सप्रेशन पता हो पोजीशन और टाइम का, वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखना एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये इंस्टेंट की है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी, राइट। अब वैल्यू मिल जाएगी आपको। दूसरा सर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा सर? पहली बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, दूसरी बार कर दोगे तो एक्सेलरेशन, सिंपल एज दैट। यहां पर dv बाई dt का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा डिवाइडेड बाय टाइम, सर वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह से हमें अगर एक वेरिएबिलिटी, एक इक्वेशन मिल गई, पोजीशन टाइम में रिलेशन मिल गया, व्हाट वी कैन डू, हम वेलोसिटी ड्राइव कर सकते हैं उससे, हम उससे एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे। यूनिट क्या होंगे यहाँ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।